خیر تو ہے. لگتا ہے تمہیں ابھی کوئی خوشخبری ملی ہے. خداوند کا شکر ہے معاملہ سنبھال لیا گیا، ورنہ جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ تھا. آپ بہت خوش قسمت ہیں. مہمان نوازی کا شکریہ، شکر گزار ہوں آپ کی. آپ سے مل کر خوشی ہوئی. اگر آپ اجازت دیں تو زہرا خاتون اور آپ سے آپ کے قبیلے میں ملاقات کرنا چاہوں گی. ضرور. دوستوں کے لیے ہمارے در ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. کون ہے یہ جو ابھی اندر آئے ہیں؟ میں نہیں جانتی سلجان خاتون. پیاری بیٹی، تم کہاں سے آئی ہو؟ ہیں کون آپ لوگ اور کہاں کا ارادہ ہے؟ ہمیں آہی افران کے ساتھ ہی کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ کے ماننے والوں میں سے ہیں. یہ نورانی چہرے والے بزرگ کون ہیں بیٹا؟ میرے والد شیخ ادب علی ہیں. مجھے ان سے دعا لینی ہے، انکار تو نہیں کر دیں گے؟ میرے والد دعا لینا اور دینا پسند کرتے ہیں، بلکہ وہ خوش ہوں گے. ہائے ماشاء اللہ، تم بھی بہت پیاری ہو بیٹی. مجھے ان بزرگ کے پاس لے جاؤ گی؟ استغفر اللہ خاتون. میں تو آپ کی دعاؤں کی طلب میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتی تھی. ادب ایک فانی انسان کا ہاتھ یا پاؤں چومنے کا مرہون منت نہیں ہوتا. ادب یہ ہے کہ آپ سمجھ سکیں خالق کے سامنے کہاں کھڑے ہیں. ہائے ماشاء اللہ، آپ کو یوں ہی سب لوگ ترکوں کا رہنما نہیں کہتے. آپ کارواں سرائے میں اپنی برکت کے ساتھ داخل ہوئے اور اسے اپنی حکمت اور عظمت کے ساتھ روشن کیا. اجازت چاہتی ہوں. کیا اپنا نام بتا سکتی ہیں خاتون؟ ایک شہید کی ماں اور ایک شہید کی بیوی، کائی قبیلے کی سلجان خاتون. خوش آمدید. خوش آمدید خاتون، خوش آمدید.
سلجان خاتون. ان تمام مصائب میں بس ایک یہ مصیبت رہ گئی تھی. شکر اللہ کا، میں نے سیلجان خاتون کو ایک دفعہ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. عائشہ، خوش آمدید میری پیاری تائی جان. خوش رہو بیٹا. خوش آمدید تائی جان. آئی گل بیٹی. خوش آمدید. خوش رہو بورجن. خوش آمدید سلجان خاتون. کیا ہوا زہرا؟ تمہارا چہرہ کیوں زرد پڑ گیا؟ ہمیں بہت خوشی ہوئی خاتون. شکر ہے کہ آپ واپس آ گئیں. میرا بہادر بیٹا عثمان کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے. میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بیٹے عثمان کو پنجرے میں ڈال دیا تھا. سوگوت کے درختوں نے بولنا شروع کر دیا ہے. سلجان خاتون کے سامنے ہر مخلوق بولنا شروع کر دیتی ہے. تمہیں نہیں پتا زہرا؟ سیدھی طرح مجھے بتاؤ کہ عثمان کہاں ہے؟ دندار صاحب نے کہا تھا کہ اس کی سزا پنجرہ ہوگی، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی سزا دے دی. اب صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے. تمہیں پتا ہے جب وہ چھوٹا تھا تو کسی کے قابو نہیں آتا تھا، مگر اس وقت وہ جو بھی کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. آئی گل، گلا خشک ہو رہا ہے، میرے لیے کچھ پینے کو لے آؤ. جی ابھی لاتی ہوں میں. آئیے. تشریف رکھیے سلجان خاتون. تم نے ارطغرل صاحب کے خیمے کے سائے میں اپنا خیمہ بنا لیا. شاید تمہیں پتا نہیں کہ ان کے خیمے کے سائے میں کوئی پنپتا نہیں. اگرچہ یہ خیمہ دندار صاحب کے لائق نہیں، مگر پھر بھی ہم اس میں رہ رہے ہیں. اللہ تمہیں اور تمہارے پیاروں کو لمبی زندگی دے انشاءاللہ. آمین. آمین. اندھیری سردیاں قریب ہیں. لوگ اس موسم میں ہجرت نہیں کرتے. سب خیریت تو ہے سلجان خاتون؟ خیریت اور شر تو اللہ جانتا ہے زہرا. کیا بات ہے؟ تمہیں لگتا ہے ہم تمہیں پریشان کریں گے؟ استغفر اللہ. حقیقت تو یہ ہے مجھے آپ کی فکر تھی. کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں تھک گئی ہوں زہرا. میرا قبیلہ بھی تھک گیا ہے. گندودو کے گزرنے کے بعد میں وہاں نہیں رہ سکتی زہرا، اس لیے پہلے میں آئی ہوں، اور اس کے بعد میرا قبیلہ بھی جلد ہی روانہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ.
अपने बाबा का शेर बेटा, काई का मुस्तकबिल, मेरा उस्मान। उस्मान, तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे? मुझे बताओ, तुम्हें आखिर क्या परेशानी है? खैरियत और सलामती से आप कबीले को लौट आए। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। देखना, काई कबीले एक हो जाएंगे। जरूर हो जाएंगे, जरूर औस कबाइल मुत्तहिद हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मेरे शेर, इंशाअल्लाह। सुना था कि आप कारवां सराय गई थी। हाँ, गई थी मैं। खैरियत है? उस्मान, कहाँ से मिला तुम्हें ये खंजर? कारवां सराय में कोई ऐसा जो आपके पास आया हो। सोफिया, कोलोजा हिसार की शहजादी मेरे पास आई थी। सोफिया? सोफिया, लेकिन सोफिया का इस खंजर से क्या ताल्लुक है, बोलो? ताल्लुक है क्योंकि किसी ने आपकी जिंदगी के बदले में किसी और की जान बख्शी करवाई। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सोफिया? यानिस। ये यानिस कौन है? शाम में मुलाकात होगी। उस्मान, जब मैं कारवां सराय में थी तो वहां शेख अदाबाली से मुलाकात हुई थी मेरी। ये क्या कह रही हैं? तुम्हारी आंखें कैसी चमक उठी हैं? क्या बात है? आपने बहुत अहम खबर दी है। उनकी बेटी थी, उनकी बेटी उनके साथ थी। बाला खातून की बात कर रहे हो? जी हाँ। हाँ बिल्कुल, मैं उससे भी मिली हूँ। तुम कहाँ चले इस वक्त? कारवां सराय जाना होगा मुझे अभी इसी वक्त। आकर मिलता हूं, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। अर्तुरुल साहब, जब तुम्हारी मरूम माँ को कबीले लाए थे, मुझे आज भी वो दिन याद है। उन्होंने बहुत सी मुश्किलें देखी। तुम्हारी मरूम माँ और तुम्हारे बाबा ने कबीले आने के बाद बहुत से मसाइल का सामना किया। अल्लाह हलीमा को जन्नत नसीब करे। उसने हर चीज को बर्दाश्त किया, मुझ जैसी को भी। तुम अपने बाबा के रास्ते पे चलोगे, मुझे यकीन था। मैं बिल्कुल ठीक थी उस्मान बेटा। यानीस जैसे शैतान और उसके चेलों से तुम निपट लोगे अल्लाह के हुक्म से। आप भरोसा रखिए मुझ पर ताईजान। हुक्म इलाही से उस शैतान को शिकस्त देकर रहूंगा। जानती हूं मैं। बताओ मुझे, ताईजान से क्या चाहते हो? बाला खातून को बहुत चाहता हूं ताईजान। तुम्हारी नजरों से साफ साफ जाहिर हो रहा है
जब भी उसका नाम आता है तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। बोलो, बताओ मुझे, तुम्हारी क्या मुराद है? मैं चाहता हूं कि आप अदाबाली के पास जाएं। मेरे उस्मान, अल्लाह के हुक्म से बाला खातून का हाथ आप मेरे लिए मांग लें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने मुझे ये दिन देखना नसीब किया। जब तुम्हारे बाबा हैं तो बेटा मुझे क्यों भेज रहे हो? बाबा तो मालूम नहीं कब लौटेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी आ भी पाएंगे। और इससे ज्यादा सब्र नहीं हो सकता। जब बाबा आएंगे तो शादी हो जाएगी। और अदाबाली को शायद खुद से नाराज कर दिया मैंने कुछ चीजें ऐसी की हैं जो उन्हें ठीक नहीं लगी। मुझे खबरदार किया था उन्होंने, लेकिन मुझे एहसास देर बाद हुआ। ये बताओ, तुम्हारे चचा के होते हुए क्या मुझे बाला खातून का हाथ मांगना चाहिए? मेरे चचा मेरे बाबा की जगह ही हैं, लेकिन आप मेरी माँ हैं। कुर्बान जाओ मैं तुम पे। किसी और की जरूरत क्या, जब मेरी माँ हयात है। तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही उस अल्लाह की वली अदाबाली की तरफ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। एक मसला और है वैसे। क्या मसला है? आइगुल, क्या बात है सुल्तान खातून, कोई जरूरी बात करनी है? मैं आयगुल के बारे में बात करने आई हूँ। बात मुख्तसर है, जरा गौर से सुनना। मगर आप मुख्तसर बात नहीं करती। सोच है तुम्हारी। क्या हुआ है उसे? मैं जानती हूँ कि आयगुल उस्मान से प्यार करती है। आपको कैसे पता चला? मैं ये तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ, तो ये दुरुस्त है। मेरी आंखों में ऐसा क्या देख लिया? ये बताएं, कहना क्या चाहती हैं? उस्मान किसी और खातून से प्यार करता है ज़हरा। उस्मान अदाबाली की बेटी से प्यार करता है। मैं और मेरी बेटी जानते हैं। मुझे और मेरी बेटी को इस बात की कोई परवाह नहीं। अगर ये बात है तो फिर आयगुल ने बाला खातून को क्यों धमकाया? उसने उसे कहा तुम्हारी वजह से हमारा कबीला मुसीबत से दो चार हो गया है। मेरी बेटी ने ठीक कहा, लेकिन उस्मान को पसंद करने की वजह से नहीं, क्योंकि वो जानती है कि उसके बाबा और वो खातून दोनों कबीले के लिए मसाइल पैदा करेंगे। इसके अलावा आयगुल आलिशार साहब को पसंद करती है। अल्लाह के फजल से आलिशार साहब ने दुंदार साहब से मेरी बेटी का हाथ मांगा है, और अब ये बात यहीं खत्म हुई। सुन के खुशी हुई। अल्लाह उन्हें खुशियाँ अता करे, इंशाअल्लाह। आमीन। इस कबीले में मुझे बहुत से काम करने हैं ज़हरा। अपने काम में खुद करने की आदी हूँ। इतने साल गुजरने के बाद काई कबीला बहुत बदल गया है आयबो के। ये बूढ़ा भी हो गया है और काफ़ी बड़ा भी, और साथ ही मसाइल भी बड़े हो गए हैं। और हम सब इन तमाम मसाइल के दरमियान घिर गए हैं। एक पेचीदा ज़माने में आ गए हैं हम।
तुम्हें क्या मसला लग रहा है? जहरा खातून, वो हमारे यहाँ आने पे खुश नहीं है। वो क्यों खुश होगी? उसने चचा को भतीजे का, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया है। उन्होंने मेरे उस्मान को तन्हा कर दिया है। वो जानती है वो मेरे बेटे की तरह है। अब वो मेरे यहाँ आने पे परेशान है। जहरा खातून ने आपके साथ दुश्मनी पाल रखी है, कहीं वो आपके साथ कुछ कर ना दें। जहरा खातून की पहुंच सिर्फ दुंदार साहब तक ही है। मुझे 3 दौर, 3 हुकूमतें और 3 बड़ी हिजरतों का तजुर्बा हासिल है। ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। उसके अहकामात सिर्फ कमज़ोरों पर ही चल सकते हैं। वो मुझ जैसी का क्या बिगाड़ेगी?